अपने बच्चों के साथ एक नोटबुक और श्री रामचरितमानस लेकर बैठ जाइए और सीखिए लर्निंग इंग्लिश थ्रू श्री रामचरितमानस और बच्चों को सिखाइए श्री रामचरितमानस। श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। Welcome to this episode of Learning English through Sri Ramcharitmanas. Welcome to this second episode. I hope you have enjoyed the discourse by Pandit Vishnudat Sharma and my conversation with you regarding learning English through Ramcharitmanas. I remember that today we are supposed to know and learn about the sentences. But before I do that, I would like to recite once more the maiden shloka, the first shloka of Sri Ramcharitmanas. वर्णानामर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको. And I would also like to translate this slok that with the invocation of grace of Vani and Vinayak, we aspire for the welfare of entire humanity through learning language, that is, letters, words, meanings, sentences, the bliss and joy of poetry, music, and all fine arts. This is not an exact or a verbatim translation, but in English language, what is important that we should communicate the spirit and the actual meaning, actual intention of the writer. And this is the actual intention that Sri Tulsidas ji wanted to invoke the grace of Mata Saraswati and Lord Ganesha for writing Sri Ramcharitmanas through the language, through the poetry, through the music, and through the fine arts, and ultimately by aspiring for the welfare of the entire humanity. Second question which I would like to address in this session is, after all, why should we learn English through Ramcharitmanas? What is the basic purpose? Do we want to make the younger generation religious? Do we want to introduce the values of Indian culture to our younger generation, our young boys and girls, or whosoever are participating in these sessions? Or is there any more purposes? I think Vishnu would dwell upon the importance of Sri Ramcharitmanas in our culture and in our heritage and in our ancient wisdom. But in this course of
in these sessions of learning English, I wish to make it very clear that these sessions would ultimately lead you to attain success in this worldly life also. As we know that there are two purposes: the advances and success in the worldly life and advances and success in the spiritual life. The success in the outward world and the success in our inner world. These sessions with the deliberations of Vishnu on Sri Ramcharitmanas and my interaction in English for learning English language would contribute to both these aspects. And now I revert back to my previous talk or conversation in which I had asked you and narrated you the definition of sentence. And we agreed that sentence is a meaningful group of words. And today you would like to know and understand how many types of sentences are there and what are the compositions of these types of sentences. I would take some of the examples. Although I will take the name from Sri Ramcharitmanas, the characters which have been encoded in Sri Ramcharitmanas, that is Ram, Lakshman, Bharat, Shatrughna, Dashrath, Kekai, Sumitra, Hanuman, Sugriv, Bali, and all these characters. But initially we will begin with some simple examples. For example, I mention 4 sentences. राम किताब पढ़ रहा है, लक्ष्मण किताब नहीं पढ़ रहे हैं, क्या सीता किताब पढ़ रही है, क्या सुग्रीव किताब नहीं पढ़ रहा है. These are the 4 sentences. These are the 4 types of sentences, and these can be labeled and can be described as affirmative sentence, राम किताब पढ़ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस, लक्ष्मण किताब नहीं पढ़ रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या सीता किताब पढ़ रही है, एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्या सुग्रीव किताब नहीं पढ़ रहा है. Essentially, there are these 4 types of sentences in English language. There are few more which we would like to learn at a later advanced stage of learning. But these are the basic types of sentences. The affirmative sentence, सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य.
As you have seen, that in the affirmative sentence, affirmation means yes, sakaratmak. You will note that this is an affirmative sentence. राम किताब पढ़ रहा है. Ram is reading a book. The next sentence is a negative sentence. लक्ष्मण किताब नहीं पढ़ रहा है. इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है. लक्ष्मण is not reading a book. क्या सीता किताब पढ़ रही है? क्या सीता किताब पढ़ रही है? Does सीता, I'm sorry, is सीता reading a book? क्या सुग्रीव किताब नहीं पढ़ रहा है? Is सुग्रीव not reading a book? Now, please take out your notebook and pen and write all these 4 sentences. I am repeating in English only. The affirmative sentence is Ram is reading a book. The negative sentence is Lakshman is not reading a book. The interrogative sentence is Sita reading a book? And interrogative negative sentence is Sugriv not reading a book? Now, please note that when you write these sentences in your notebook, the sentence must be complete. The sentence becomes complete only with proper punctuation. In first 2 sentences, that is affirmative and negative sentence, the punctuation is full stop. And in next 2 sentences, that is interrogative and interrogative negative sentence, the punctuation is a question mark. Remember, no sentence is complete without punctuation. विराम चिन्हों के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है. इसलिए विराम चिन्हों का प्रयोग हमेशा लिखने में और बोलने में करना चाहिए. इन 4 वाक्यों में जो विराम चिन्ह प्रयोग में आए हैं वो है पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह. We have used 2 kind of punctuations, the full stop and the question mark. Now, let us understand the composition of the sentence. Ram is reading a book. Ram is the subject. Subject means the noun or the person who is doing an activity. So Ram is the subject. Is reading is helping verb. Reading is main verb. A an article. Book is an object. And full stop is a punctuation. So the composition is
subject, helping verb, main verb, article, object, and punctuation. This is the composition of an affirmative sentence. Coming to the next type of sentence, the negative sentence, Lakshman is not reading a book. Lakshman is subject, is helping verb, not a negative, reading main verb, a article, book object, full stop. श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वंदे वाणी विनायको। वंदे वाणी विनायको। कल जिस अद्भुत यात्रा का प्रारंभ हुआ था वह यहीं जाकर विश्राम को प्राप्त हुई थी। वंदे वाणी विनायको, एक अद्भुत क्रम जहाँ माँ शारदा की वंदना पहले की गई और विनायक की वंदना बाद में की गई। मानो कुछ कहना चाह रहे हैं बाबा तुलसीदास। हमें विचार करना ही होगा कि ये हिंदी की वर्णमाला क्या है, ये संस्कृत की वर्णमाला क्या है, इसका प्राकट्य कहाँ से हुआ, इन श्लोकों का भाव क्या है, इस ए आ ई का भाव क्या है, इस कै ख ग का विज्ञान क्या है। ये विज्ञान जब हम जानेंगे और अंग्रेजी माध्यम से जानेंगे तो धीरे धीरे हम ए फॉर एप्पल से वहाँ पहुँचेंगे जहाँ यात्रा ऐसे अज्ञानी से प्रारंभ होकर गे से ज्ञानी की पूर्ण पराकाष्ठा तक पहुँचा देती है। जब इस श्लोक का ही हम भाव देखते हैं तो ये श्लोक कैसा श्लोक है, अनुष्टुप छंद से बना हुआ श्लोक है। ऐसा श्लोक, अनुष्टुप छंद का भाव क्या होता है, जिसके 4 वर्ण होते हैं। वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। 4 पद में बिल्कुल जैसे पलंग स्थापित होता है उसी प्रकार ये धरती पर स्थापित श्लोक होता है। और इसीलिए प्रथम जो अनुष्टुप छंद से श्लोक लिया गया उसका सबसे बड़ा गुण ये है, पूर्ण वैज्ञानिक भाषा है कि इसके भीतर प्रत्येक के अंदर 5वां जो वर्ण है वो सदैव लघु होगा और छठा जो वर्ण होगा वो सदैव दीर्घ होगा। ये नियम है प्रत्येक चरण का। इसी प्रकार हम जब देखते हैं दूसरे और चौथे चरण का 7वां जो वर्ण है वो सदैव लघु होगा, वहीं तीसरे और चौथे चरण का जो 7वां वर्ण है वो सदैव दीर्घ होगा। ये अनुष्टुप छंद, पहला छंद जब प्रकट हुआ उससे पहले वेदवाणी थी। महर्षि भरद्वाज के साथ वाल्मीकि ऋषि जा रहे थे कि एक दृश्य देखते हैं। एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा मिथुन रथ था और उस समय एक व्याघ्र बाण मारता है। उन दोनों जोड़ों में से एक की मृत्यु होती है, दूसरा विरह में प्राण त्याग देता है। कुपित होकर एकदम से वाल्मीकि के मुख से शब्द निकलते हैं और शब्द छंदबद्ध हो जाते हैं। उन छंदबद्ध शब्दों का भाव जो बनता है तो वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि इससे पहले वैदिक भाषा थी। संस्कृत भाषा में श्लोक शब्द नहीं था। इससे पहले जैसे भाषा अलग अलग है ना, वैदिक, संस्कृत, प्राकृत, आंग्ल, उसी प्रकार उस समय केवल लोग इतना जानते थे हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गुम मवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुम मवामहे।
निधिनान्त्वा निधिपतिगुं मवामये वशो मम आहम जानि गर्भधमात्मजासि गर्भधम। ये पहला श्लोक उत्पन्न हुआ जहाँ वाल्मीकि के मुँह से अनायास एक स्फोट प्रकट हुआ भगवती गायत्री की कृपा से। मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती क्षमा यत् क्रोञ्च मिथुनादेगं वधि काममोहितम्। अरे निषाद, तूने बहुत बड़ी गलती की है। तू संसार में ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, तेरा नाश हो जाएगा, क्योंकि तूने मिथुन रथ क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया। जो सृजन कर रहे थे उनका संहार कर दिया। इसलिए हे निषाद, तेरा बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अब बोलने के बाद जब वाल्मीकि ने देखा, अरे ये तो अद्भुत काम हो गया, ये तो पूरा 4 चरण में बना हुआ है, अद्भुत काम है। इसके 4 चरणों में भी प्रत्येक चरण का 5वां वर्ण लघु है और दूसरे और चौथे चरण का 7वां वर्ण भी लघु है, और इसी प्रकार प्रत्येक छठा जो वर्ण है वो सारे के सारे दीर्घ है, और साथ में पहले और तीसरे चरण का 7वां वर्ण जो है वो भी दीर्घ है। ये अद्भुत रचना हुई, एकदम वाल्मीकि के मुख से आनंद की उत्पत्ति हुई। जैसे ठीक ऐसा ही था यूरेका, ए वंडरफुल डिस्कवरी, एक ऐसी खोज जो पहले नहीं थी। और देखते ही देखते भगवती गायत्री की कृपा से वाल्मीकि ने पूरा आदि काव्य वाल्मीकि रामायण लिख दिया। बाबा तुलसीदास भी, शास्त्र मत है कि वाल्मीकि ऋषि ने ही कलयुग में तुलसी का अवतार लिया। तभी तो भक्तमाल में कहा जाता है, कलि कठिन जीवन स्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि कठिन जीवन स्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकस्तुलसीदास कलो देवी भविष्यति। भविष्य पुराण इस बात की साक्षी है कि कलयुग के अंदर जीवों का उद्धार करने के लिए वाल्मीकि ऋषि ही तुलसीदास बनकर आएंगे। इसलिए बाबा अपने इस पूर्व जन्म की स्मृति में प्रारंभ उसी अनुष्टुप छंद से करते हैं, उसी आनंद से गाते हुए करते हैं। वर्णानाम अर्धसंगानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वंदे वाणी विनायको। वंदे वाणी विनायको, क्योंकि उस अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के शरीर से प्रणव से निकले हुए इन स्वर और व्यंजन के द्वारा उन्हें अद्भुत रस को उत्पन्न करना था। इसलिए इस भाव से वंदना की गई, क्योंकि मानस है ही अद्भुत रस की खान। आखर अर्थ अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा कवित दोष गुण विविध प्रकारा। इतनी अद्भुत रचना जिसके अनेकों अनेकों अलंकृत गहने पहने हुए अर्थ प्रकट होंगे, इतनी उत्प्रेक्षाएं कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। इतने छंदों का प्रबंध, और वो भी अनेक अनेक विधियों से कि मनुष्य कल्पना में भी नहीं सोच सकता। इतनी सुंदर रचना, वो तो बिना शारदा की वंदना के संभव ही नहीं थी। ये जितने भी व्यंजन है हमारे, जितने भी स्वर है, कैसे लेकर है तक, कुल 33 व्यंजन। इसी प्रकार ऐसे लेकर औ तक कुल 9 स्वर है। फिर उसके बाद उनके हर्ष स्वर, उनके दीर्घ स्वर, उनको मिलाकर के फिर स्वरों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे एक का स्वर बना आ, छोटी ई का स्वर बना बड़ी ई, छोटे ऊ का स्वर बना बड़ा ऊ, एक का स्वर बना आई। तो इस प्रकार फिर विज्ञान इसको बढ़ाता जाता है। और इतना ही नहीं, इतनी वैज्ञानिक भाषा है, भगवान कोई कल्पना नहीं कर सकता। जहाँ पर अनुस्वार फिर अर्थ को बदल देता है, जहाँ विसर्ग लगता है तो फिर अर्थ में परिवर्तन लाता है, जहाँ जिह्वा मूलीय शब्द पैदा होता है तो अलग अर्थ लाता है, और जहाँ उपदमानीय स्वर होते हैं पै वर्ग वाले, आप बोलकर देखिए,
एक शब्द कौन से जिह्वा के मूल से प्रकट होते हैं, एक उपदमानीय होते हैं। प वर्ग के जितने बोलोगे आप प फ ब भ, स्वतः आपका जो है स्वर अलग ढंग से आएगा। क वर्ग बोलोगे तो अलग ढंग से आएगा, क ख ग घ। बिना जिह्वा को तालु के स्पर्श, मूल के स्पर्श कराए क वर्ग नहीं बोल सकते। इतनी सुंदर वैज्ञानिक भाषा जहाँ रचना में आ जाएगी आप सोच नहीं सकते। इसलिए इस भाषा की विराटता को देखकर पाणिनि कहते हैं 63 हुए, भास्कर कहते हैं 64 वर्ण हो गए। इतनी विराट भाषा। ए फॉर एप्पल से जेड फॉर जेब्रा कितनी है, 26 अक्षर, और ये कितनी है, 64 अक्षरों की। कितनी बड़ी, यदि हम इनके देखेंगे समुच्चय देखेंगे तो कितनी विराट शब्दकोश का निर्माण हो जाएगा। इतनी अद्भुत भाषा की शरण में जब जाना हो, उसमें वैदिक साहित्य का समावेश करना हो, उसमें पौराणिक साहित्य का समावेश करना हो, उसमें प्राकृत साहित्य का समावेश करना हो, उसमें अध्यात्म रामायण आदि साहित्य का समावेश करना हो, और उसमें लोक श्रुति जनश्रुति का समावेश करना हो, और उसको भी सामान्य भाषा में नहीं करना है, छंद शाम करना है। उसको आनंद की धारा अविरल बहती रहे ऐसी काव्यबद्ध करना है, तो निश्चित रूप से माँ की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है। और इसीलिए नवरस से उत्पन्न रसानाम छंदसामपि करनी थी। रस पैदा करना है। कैसा रस पैदा करना है कि जब राम का विवाह होता है तो हृदय आनंद में पुलकित हो जाता है। जब राम वन गमन में जाते हैं तो बोलने वाले और सुनने वाले रोने लग जाते हैं। जब भगवान राम धनुष उठा कर कहते हैं निश्चरहीन करो मही बुझे उठाए पनकीन, तो वीर रस प्रकट हो जाता है। बोलने वालों में वीर रस प्रकट हो जाता है, सुनने वालों में। जब रावण का वध होता है तो देवता ही पुष्प नहीं बरसाते, श्रोता पुष्प बरसाते, वाचक पुष्प बरसाते, पक्षी पुष्प बरसाते, पहाड़ पुष्प बरसाते, पेड़ों से फूल गिरते हैं। ये भाव पैदा होता है। कब होता है? श्रृंगार वीर करुणा अद्भुत हास्य बयान का, वीर विभत्सो रौद्रोचरसा। विभत्स रस होना चाहिए, श्रृंगार रस होना चाहिए, वीर रस होना चाहिए, करुणा रस होना चाहिए, हास्य रस होना चाहिए। ये सारे रस ऐसे हो जो एक जगह इकट्ठे हो जाए तो रामचरितमानस बनती है। और इसलिए पहले शारदा की वंदना की, फिर वो कहते हैं कि सुनो, ये वर्णों का जो अर्थ है ये हृदय पर स्फोट करना चाहिए। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम। और इसकी करती कौन है? भगवती शारदा है। वो भगवती शारदा अक्षरों की जनक है, क्योंकि शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि उस भगवती शारदा ने ओंकार का आश्रय लिया और ओम मंत्र का आश्रय लेके ओम के द्वारा 50 वर्णों की उत्पत्ति की। 5 स्थान लिए उन्होंने, कंठ लिया, मूर्धा लिया, तालु लिया, दंत लिया और ओष्ठ लिया। इन 5 स्थानों से ये वर्णमाला स्थापित की। सारे के सारे व्यंजनानि त्रयस्त्रिन, 33 व्यंजन है, स्वरश्चैव 14 है, 14 जो स्वर है, इन सब की जिव्यामूलीय विसर्गस्य अनुस्वारो एवच, ये सारे के सारे अनुस्वार आदि की उत्पत्ति जगन माता ने कैसे की? ओंकार को आधार बनाया। और ये ओंकार ही तो गणपति है। ये जो ओम की जो सूंड है वही तो गणपति है। इसलिए जगन माता के मुंह से जब ओंकार निकला तो शास्त्र कहते हैं गज कुंभाकृति वर्णा प्लूतस्य परिकीर्तित है। गज वर्ण के रूप में हाथी की सूंड के समान ये स्वर संसार को प्राप्त हुए। इसलिए वाणी के श्रीमुख से निकलकर गणपति के माध्यम से संसार को स्वर प्राप्त हुए, संसार को संस्कृत की वर्णमाला प्राप्त हुई। और इसीलिए बाबा तुलसीदास ने पहले ओंकार की धारणा की, वाणी की धारणा की। वाणी के मुख पर गजानंद बिठाए वंदे वाणी विनायको, और उसके द्वारा उन्होंने पूरी की पूरी वर्णमाला की पूजा कर दी। मानो वो कहना चाह रहे थे, हे हिंदी भवानी, हे संस्कृत भवानी, तू इस संसार को कृतार्थ कर और अधर्म का नाश कर। दूसरा भाव, पहले श्री जी की वंदना की, क्योंकि भगवती सीता सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए वाणी नाम श्री का हो गया। उस श्री की वंदना की और उसके बाद श्री के जो समर्थ सामने दिख रहे हैं उन भगवान श्री रामचंद्र की वंदना की, क्योंकि ओंकार में और राम में तत्वतः कोई भेद नहीं है। ओंकार भी जब बोलते हो तो धीरे धीरे होठ ऊपर खुलते हुए ऊपर जाते और जैसे ही पूर्ण होते वापस ढक्कन लग जाता है।
ऐसे ही जब राम बोलते हो षडाक्षर मंत्र तो धीरे धीरे होठ ऊपर जाते हैं और वापस आकर बंद हो जाते हैं। तुलसी रा के कहते ही निकसत कोटि विकार, फिर पाछे आवत नहीं देत कपाट मकार। जो राम की ध्वनि के समय ब्रह्मांड में घुस जाता है, जो ओंकार की ध्वनि के समय ब्रह्मांड में जो घुस जाता है, दोनों के दोनों स्फोट बराबर है। इसलिए हो सकता है बाबा तुलसीदास जी ने वंदे वाणी विनायकों के रूप में उनकी वंदना कर डाली हो, श्री जी की वंदना की हो, प्रणव की वंदना की हो, राम की वंदना की हो, शारदा की वंदना की हो। इसलिए क्रम भंग नहीं हुआ, क्रम पूर्ण हुआ है, ताकि सब जाने कि किस प्रकार वो जो कन्याकुमारी के बेटे हैं। शारदा का नाम क्या है? सदैव कुमारी रहने से, सदैव अक्षत योनि रहने से, सदैव अविवाहित रहने से वो शारदा माँ कन्याकुमारी कही जाती है। और उस कन्याकुमारी के पुत्र कौन है? उस गौरी के तनय गणपति है। पहले माँ का ध्यान किया, फिर माँ का ध्यान करके वाणी उत्पन्न की, ताकि उस महान गजानन तत्व को, जिसका ध्यान जब हम करेंगे तो हमें आनंद आएगा, उस गजानन तत्व का ध्यान करके उन्होंने इस यात्रा में प्रवेश किया, जो पूर्ण विश्वास की यात्रा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जिसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। बोले राजा रामचंद्र की जय, बोले अवधपति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। और अब हम चलते हैं इसी का भाव आदरणीय ए.के. पुरोहित सर से सुनने के लिए। आइए उनसे सुनते हैं और आंग्ल भाषा के माध्यम से मानस को जानते हुए धीरे धीरे अपने बुद्धि, मन, चित्त और अंतःकरण को हिंदी में लाते हैं, हिंदी से संस्कृत में और संस्कृत से चलते हुए वैदिक वांग्मय में लेकर चलेंगे। जय श्री राम।